Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we have Muhammad Jamshed Mushtaq with us, who has secured 13th position all over Pakistan and has been allocated to the Foreign Services of Pakistan. So Jamshed, how does it feel to be with us? And how does it feel to secure 13th position all over Pakistan? To be honest, it feels exhilarating that I've managed to achieve my dream, Right. that too in my first attempt. MashaAllah. Could you tell us a bit about your background and your previous educational experience with regards to your undergrad and masters? I did my undergrad in Bachelor's in Electrical Engineering from the Lahore University of Management Sciences. Right. And I graduated in June 2022. ओके ग्रेट. और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे आपकी अटेम्प्ट के अंदर? आपने कौन से अपने सिलेक्ट किए थे और क्राइटेरिया क्या था आपका प्राइमरीली ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट कर रहे थे अपने? Sir, सबसे पहले to talk about the criteria for selecting my optionals, I had just one goal in mind, the Foreign Service of Pakistan. Right. And I selected my optionals according to that. They were international relations, international law, history of USA, and environmental science and journalism and mass communication. आई रिमेंबर जमशेद काफ़ी स्केप्टिकल थे और काफ़ी जो है वो कंफ्यूज रहते थे और काफ़ी जो है वो थोड़े से शेकी होते थे, बट वी ऑलवेज हैड फेथ इन हिज एबिलिटीज एंड वी वर प्रीटी श्योर दैट ही वुड गेट इन. आई थिंक फॉर जमशेद इट वाज हिज ड्रीम कि ये फॉरेन सर्विसेज पाकिस्तान में एलोकेट हो. डू यू रिमेंबर जमशेद बिफोर योर इंटरव्यू इवन आस्क्ड मी कि कलर टाई का कौन सा होना चाहिए Yes. और सूट कौन सा पहनना चाहिए. किप्स के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? व्हाट रोल डिड दिस इंस्टीट्यूट प्ले थ्रू आउट योर CSS preparation? Could you briefly shed light on this role of this institute in your written part, in your interview part, and अभी तक की जो आपकी जर्नी हमारे साथ रही है? So when I came to KIPS for CSS preparation about 2 years ago, Right. I did not have as much problem in English grammar and punctuation as some other candidates may have had. Right. So that was where I had a head start. So Jamshed had a head start because primarily लोग struggle करते हैं English के साथ, लेकिन जमशेद के वो मसले नहीं थे. He was also my junior at LUMS और LUMS के लोगों का generally English का expression ठीक होता है. So he did not have to face that difficulty. Right. So go on. English was not an issue for you. The only issue was proper guidance about how to compose my essay in précis and composition, Right. how to structure my answers, whatever subject I choose. Right. और KIPS का क्या रोल रहा? How important was this institute's role in your entire journey and success today? The main role that this institute played was to guide me properly about the psyche of the examiner, Right. how the examiner judges a question and its answer, and they told me properly, all of my teachers did, whether it was compulsory subjects or whether it was my optionals. Would you like to name a few people who you would always remember कि यार इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है KIPS के अंदर, जो आपके बड़े अच्छे मेंटर्स रहे हैं, आपको लगा हो कि बहुत उन्होंने गाइड किया है, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था? Would you like to give credit to a few people like you were mentioning Sir Farhan Abbasi? Yes. और कौन से लोग हैं? Dr. Shahid Wazir Khan, Right. he played a great role in guiding me regarding interview preparation. उन्होंने Okay. बताया कि आपने posture कैसे रखना है, आपने आंसर जो है वो अपना स्ट्रक्चर कैसे करना है उनके सामने, पैनल के सामने. Miss Aisha. Miss Aisha grilled me properly on questions Right. about how to answer them. She put me in pressure situations deliberately Right. in the interview preparation. And what do you so- have to say about the written preparation? जो आपका written का यहाँ पे part था, जो writing practice कराई, आपको सारी तैयारी करवाई, उसमें साथ साथ किस तरह आपको सर अली अनान जैसे mentors या बाकी teachers का किस हद तक आपके ख्याल में रोल था आपकी success के अंदर? Without their participation, without their contribution, I don't think I would be sitting here Right. having cleared CSS and attained my Great. dream. तो और इंटरव्यू आपने काफ़ी जगहों पे दिया होगा, काफ़ी ज़्यादा आपने मॉक्स दिए होंगे. सो व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट जो KIPS का पैनल था? वी हैड अ bunch of senior bureaucrats, former FPSC members and senior bureaucrats who were retired, who were taking the interview. So I think you took about 2-3 interviews with the grad panel, Yes. right? So you were very adamant कि यार मैंने जो है वो maximum practice करनी है. So उनका क्या रोल था और KIPS का जो mock panel है उनके बारे में आपके क्या thoughts हैं? ओवरऑल जो सीनियर्स आप लोग जो आपके मेंबर्स बैठे हुए थे इंटरव्यू पैनल के, उनके बारे में क्या थॉट्स हैं? So to be honest, when I started my interview preparation after clearing the written exam, I was pretty much, as you could say, a dunce. यानी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी कैसे है. सही. जो मुझे ग्रिलिंग यहाँ पे मिली मेंटोर्स की तरफ से और जो ग्रैंड पैनल मॉक में उन्होंने मुझे टिप्स दी कि आपने इस तरह ड्रेसिंग करनी है, इस तरह पोस्चर रखना है, इस तरह आंसर करना है,
तो उसकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। बिल्कुल। तो आई रिमेंबर जमशेद जो है वो इसका इंग्लिश का तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, और आहिस्ता आहिस्ता इसको किप्स के और बाकी सारे लोगों ने मिल के हम लोगों ने गाइड करके इसको काफ़ी हद तक इक्विप कर दिया। उसके बाद वी वर प्रिटी श्योर के जमशेद वुड क्लियर हिज रिटन पार्ट। इन ऑल ऑनेस्टी वी वर स्लाइटली स्केप्टिकल अबाउट द इंटरव्यू बिकॉज ही वॉज शाई, इसकी टोन बहुत लो होती थी, बहुत ये धीमे अंदाज में बात करते होते थे और बहुत ही ज़्यादा जो है ना थोड़े फॉर्मल रहते थे। सो देयर वर अ लॉट ऑफ एरियाज दैट ही हैड टू वर्क ऑन, बट ही मेड श्योर कि ये हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से टेक अप करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी पर्सनालिटी के अंदर करें, एंड ही कुड पुट हिज बेस्ट फेस एंड फुट फॉरवर्ड टू एस इन द फाइनल स्टेज। और बिफोर द रिजल्ट केम आउट ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी एवरी नाउ एंड देन, इफ यू रिमेंबर, he used to text me after every few days कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, क्या सीन है, I'm having anxiety, I'm having certain thoughts about the result, मुझे समझ नहीं आ रही, what if I don't get in, what if this happens, फलाना टमकाना। अच्छा, यूजुअली लोगों की फॉरेन सर्विस थर्ड या सेकंड या फोर्थ प्रेफरेंस होती है, लेकिन जमशेद के केस में एक तो इसका माशाल्लाह मेरिट भी टॉप वाला है और इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी फॉरेन सर्विसेज थी। सो ही ऑलवेज वांटेड टू गेट इन टू फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, and I think God has been very kind in granting him his dream allocation. So why did you choose for foreign service, Jamshed? Why not police or Pakistan administrative services for that matter, जो generally audience आपकी या ज़्यादा आवाम मुस्तरफ करती है? Why were you so inclined towards foreign services? So इसके पीछे I would say कि 2 reasons हैं। इसमें we would really like to know your thoughts because majority doesn't do that, and whoever is aiming for foreign service उसको आप क्या कहना चाहेंगे और आपने foreign service क्यों ली? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट किया। राइट। आई प्रॉपरली मेड एन एनालिसिस के 12 ग्रुप्स में से मेरे लिए कौन सा ग्रुप जो है वो मोस्ट सूटेबल होगा, ठीक है, कौन से मेरी फील्ड फेवरेट है, कौन सी चीज़ मुझे पढ़ने में, परखने में, एनालिसिस करने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है, एंड दैट टर्नड आउट टू बी फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस वजह से मैंने जो है फॉरेन सर्विस को चुना। और सेकेंडली जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया CSS का 2 years पहले, तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज़ कि यार मुझे रिलेटिव्स की या फैमिली की बात माननी चाहिए PAS या PSP की, या फिर मुझे अपना जो है वो दिल जो कहता है FSP वो चुनना चाहिए। आई वॉज रियली कन्फ्यूज बट सो आपके ख्याल में फॉरेन सर्विस को परस्यू करने के क्या फ़ायदे 2-3 आपको नज़र आते हैं जो आपको बाकी ग्रुप्स में नहीं आते, पुलिस या PAS के अंदर? फॉरेन सर्विस में व्हाट इज़ इट दैट यू नो मेक्स यू फील कि यार दिस इज़ मेड फॉर यू? what made me feel that foreign service is for me, first of all, is that foreign service में आपको international exposure मिलता है। Right. You do not think in terms of local administration and local problems, you think globally. You think about cooperation with other people, with other countries, with other leaders in order to sort out humanity's problems and to secure one's country's national interest. Right. तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है foreign service के बारे में। You're still very, you know, you're containing your emotions. I mean, I think you're still in a state of disbelief कि यार मुझे मिल गई है foreign service. You were waiting for this day and now it has finally arrived, और आप इतना जो है वो अभी भी calm और contained हो। तो क्या अभी आपको यकीन नहीं आ रहा, या are you trying to, you know, contain yourself deliberately, trying to stay humble and, you know, trying to stay grounded? How are you feeling? Because abhi bhi nobody can tell that you have secured 13th position in Pakistan. That's a big achievement. So I wanted to ask Abhi, how are you feeling? Could you just speak your heart out कि क्या तासुरात हैं आपके? To be honestly मैं बहुत मुश्किल से अपने जो वो जज्बात पे कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत लाइफ लॉन्ग मेरा ड्रीम था कि मैंने अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल। इसलिए मेरे लिए इमोशंस को कंटेन करना मुश्किल होता है। अभी लेकिन आपका दिल क्या कर रहा है इस वक्त? मैं भागूं, चलाऊं, सेलिब्रेट करूं? पेरेंट्स के क्या आपके थॉट्स थे? उनको पता चला तो व्हाट डिड दे से? डिड दे गेट टेरी आइड या डिड दे एक्चुअली वर दे सुपर हैप्पी? व्हाट वाज देयर रिएक्शन? Parents were obviously super happy that I had finally achieved something very worthwhile in life. Right. They were saying कि you can pursue whatever group you like, we just want to see you succeed. And if you get your desired group, we would be doubly happy. Great. So before you were starting your journey, I remember you were talking of a few other institutes कि यार यहाँ जाऊँ तैयारी करूँ, यहाँ जाऊँ, and what somebody you know asked you कि यार किप्स में आप आके देखो, I remember, and then you had certain expectations about this institute. So in all honesty, let's be very candid, आप जब किप्स में आए या before that you were considering other options as well.
सो किस हद तक आपकी एक्सपेक्टेशंस इस इदारे ने मीट की या एक्सीड की, या आपके ख्याल में जो आपने सोचा था वो फुलफिल हुआ हर एस्पेक्ट के अंदर किप्स के रोल के अंदर? रिटन एग्ज़ाम के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस. Right. So if I remember, you first joined our basic session, which was 4.5 months long. Yes. And then you were a part of the smart class, जिसमें we choose a bunch of selected individuals जो potential रखते हैं, और उसमें हम लोगों ने identify किए थे कुछ आपके और classmates भी वो उसमें qualify किए हैं. And then you were also a part of the interview preparation, जिसमें आपको sole attention मिली. So written was excellent in your opinion. Yes. So वो उसमें आपकी expectation जो थी वो that exceeded your सारी वो चीज़ें. ऐसा ही है? जो गाइडेंस नेसेसरी होती है एक एस्पिरेंट को सक्सीड करने के लिए, सही. वो मुझे प्रॉपरली मिली थी. आई कैन बी श्योर ऑफ दैट. अच्छा, so a lot of people, since you cleared your exam in the first attempt and you've been very lucky, I remember मैंने भी जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो मज़ा होता है ना, that is unreal. So मेरा आपसे सवाल ये है, and to all our viewers and aspirants, those who are planning to appear in CSS 2026 या जो अभी अपकमिंग आपके एग्जाम्स आ रहे हैं 25 वाले या 26 वाले, उन लोगों के लिए अगर आप अपनी जर्नी का सम करो और क्रक्स बताओ कि इफ़ दे वांट टू एक्सेल एंड यू नो क्वालिफाई देयर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो व्हाट वुड जमशेद टेल देम कि यार दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, या what would be your key takeaways जो आप लोग आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ, so that people can learn from you and excel in the first attempt? Could you please elaborate on that in detail? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि CSS के जर्नी में जब भी आप स्टेप इन करें तो पहले तो बी रियल, क्योंकि इट इज़ अ गेम ऑफ लक इन एडिशन टू योर टैलेंट्स. क्योंकि आप सक्सीड कर भी सकते हो, यू कुड फेल, यू कुड बी डिसअपॉइंटेड दैट यू मेड ऑल द एफर्ट एंड यू डिडंट पास. लेकिन एक बात इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि इन एडिशन टू बीइंग रियल, यू शुड आल्सो हैव वन स्पेसिफिक गोल इन माइंड. आपका एक जो कोई भी ग्रुप आपको पसंद है, प्रेफरेबली तो PAS, PSP या FSP ही होता है लोगों का, लेकिन कोई भी ग्रुप आपकी पसंद का अगर है तो उसको जो है वो जुड़ जाओ उस पर. एक दफ़ा डिसाइड कर लो शुरू में एनालिसिस करके कि कौन सा ग्रुप आपके लिए सूटेबल है, और उसकी तैयारी उस पर लिए डेडिकेटेड हो जाओ, पैशनेट हो जाओ. यहाँ तक कि लोग आपको एज इन माई केस आपको जो कहना शुरू हो जाए कि आप तो ऑब्सेस्ड हो इस ग्रुप के साथ, तो दैट इज़ गुड. ऑब्सेशन जो है वो हेल्दी ऑब्सेशन अगर है आपकी, आप अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हो, आपने एनालिसिस किया, आपने देखा कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस ग्रुप को सूट करती है, तो यू डिज़र्व टू हैव दिस चॉइस एंड टू स्टिक टू इट. लीव इट वट एवर योर रिलेटिव से, वट एवर एनी बडी सेज टू यू कि जी ये वाला ग्रुप फलाना ग्रुप चंगा है, फलाना ग्रुप नहीं चंगा है, तुसी ये ले लो, तुसी वो कर लो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी आपने गुजारनी है, तो आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा ग्रुप सूटेबल है, और उसके लिए चाहे कोई कुछ भी कहे स्टिक करो और तैयारी डेडिकेटेड हो के करो. इंशाल्लाह चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट में हो चाहे सेकंड अटैम्प्ट में हो, सूनर और लेटर यू विल अचीव योर ड्रीम्स. और व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स जो एक बिगिनर को अचीव करने चाहिए ताकि वो क्वालिफाई करने के चांसेस मैक्सिमाइज कर सकें? Could you just briefly list a few things? What are the major mandatory things that they should have to increase their chances to qualify the exam? The major mandatory things I would like to say first of all is the English expression. Right. Their grammar and their punctuation should be, if not top notch, if not very flowery, it should be at least decent. Right. यानी सिंपल लैंग्वेज भी हो तो प्रॉपर ग्रामर और पंक्चुएशन रूल्स के मुताबिक हो. दूसरा, उनको करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स का नॉलेज जो है वो उनको अप टू डेट होना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि CSS जो एग्ज़ाम है इसमें करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे आपके कोई ऑप्शनल आ जाए, चाहे आपका कोई जो है वो कंपलसरी आ जाए. तो दीज टू थिंग्स आर द मेन. और उसके बाद अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, तो आपको इंटरव्यू में भी प्रॉपरली कुछ रूल्स होते हैं, पॉस्चर के भी, और आपको स्पीकिंग, स्ट्रक्चरिंग, सब कुछ वो फॉलो करना पड़ेगा. तो दीज आर द मेन टिप्स. Anything else, any message that you would like to give to our viewers and aspirants? Anything जो आपने कहनी हो, since आप इस platform पे हैं, a lot of people will be looking forward to hearing from you and they would be eager to listen to your words. So any last words that you would like to say before we come live again? कोई और ऐसी चीज़ आपने बतानी हो aspirants को या कुछ भी हो? First of all I would say कि चाहे शुरू में आपको जर्नी कितना ही भी मुश्किल लगे,
यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, क्योंकि ये पहला स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इट सीम्स। आई मीन जब कॉन्स्टेंटिनोपल में 1453 में जब महमद II वाज आउटसाइड द वॉल्स, तो उसे भी लगा था कि ये इम्पॉसिबल है, बट उसने स्ट्रगल की एंड ही डिड इट 2 months लेटर। तो उससे आप उसके जैसे अगर बन नहीं भी सकते तो उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आपने कोई अपने लिए कोई गोल सेट किया है, तो आप उसको जो है वो स्ट्रगल करो, उसके लिए आप अचीव करोगे सूनर और लेटर, बिलीव मी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। थैंक यू जमशेद फॉर हैविंग अस विद यू टुडे। और दूसरा ये कि वी वुड विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एंडेवर्स, और जो आपकी सारी सर्विस का पार्ट होगा। एज वी डिस्कस्ड हाउ Kipps played an instrumental role in Jamshed's success, and he was adamant to get into foreign services of Pakistan, and माशाल्लाह उसके बावजूद उसने ये 13th position भी पाकिस्तान में secure की है। So we wish him the very best of luck, and he will be visiting Kipps। कोई आपको guidance चाहिए हो, कोई आपको assistance चाहिए हो, कोई आपने चीज़ें discuss करनी हो, he will be available to help and guide all of you। आपको कोई selection discuss करनी है subjects की, कोई mentorship चाहिए, he will be there on our seminars as well, और because this place is like home। और आज भी सबसे पहले अपना celebrate करने success जो है जमशेद हमारे पास ही आया है, और inshallah we wish him all the best। And there are no surprises today because God has been very kind, and I knew from the core of my heart, Jamshed has my texts in his phone के मैं इसको कहता था कि यार don't worry तुम्हारी foreign services confirmed है। He is smiling right now because he knows कि कितना मैं श्योर था, and everybody was like यार he is made for foreign service। So अल्लाह इसको मज़ीद कामयाब करे, and thank you so much Jamshed for taking out time and celebrating your success with us। और इंशाल्लाह आगे भी जब भी मौका मिला we would like you to interact with our viewers, physical sessions में भी आप आते रहें, और जहाँ पे भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आप ऑडियंस को हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ ऑलवेज स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सक्सेस जब आता है तो नेचुरली बंदा एक थोड़ा सा वो बहुत उड़ने लग जाता है, वो फील कर जाता है। बट मैंने आपको हमेशा से कहा है, लोगों को कहता हूँ, जितना आप हम्बल, डाउन टू अर्थ और ग्राउंडेड रहेंगे उतना आपको फ़ायदा है। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ मोहम्मद शाहरुख साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ Kipps CSS। Allah Hafiz। Allah Hafiz।